امرو اور بادشاہ شکران محافظ اور شہزادی رخسانہ کے روپ میں 1 گھنٹے کے اندر شاداب آباد پہنچ گئے۔ بستی سے شاداب آباد کا فاصلہ 50 کوس کا تھا اور امرو وہاں جلد از جلد پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اسی لیے جب وہ بستی سے باہر آئے تو امرو نے ایک آدمی کو چکما دے کر 2 گھوڑے ہتھیا لیے۔ بادشاہ نے اسے اس حرکت سے منع کیا تو امرو نے یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا کہ اگر ہم اس سے گھوڑے نہ لیتے تو کچھ دیر میں شاطر جادوگر نے آ کر چھین ہی لینے تھے۔ شاداب آباد کا ہر آدمی گمسم اور دکھی نظر آتا تھا۔ امرو نے کچھ لوگوں کو بادشاہ شکران کی انصاف پسندی اور نیک دلی کا ذکر کرتے ہوئے بھی سنا۔ وہ سب شہزادہ بلقان اور شاطر جادوگر کے ظلم سے تنگ تھے۔ امرو نے گھوڑے محل کے بڑے دروازے کے سامنے جا کر روکے اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے دروازے پر موجود سپاہیوں سے روبدار آواز میں کہا، جلدی سے دروازہ کھولو۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ فران کی شہزادی صاحبہ تشریف لائی ہیں اور تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتی ہیں؟ سپاہیوں نے جب دوسرے گھوڑے پر نظر ڈالی تو وہ دیکھتے ہی رہ گئے، کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت شہزادی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ امرو نے جب دوسری بار گرج کر کہا تو وہ چونکے اور انہوں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار اندر داخل ہو گئے۔ وسیع صحن سے گزر کر وہ گھوڑوں کو برآمدے کی سیڑھیوں کے اوپر چڑھاتے چلے گئے۔ پختہ فرش کی وجہ سے گھوڑوں کی ٹاپیں گونج پیدا کر رہی تھیں۔ پہلو کے کمرے سے کسی نے سخت لہجے میں کہا، یہ کون کمبخت ہے جو گھوڑوں کو برآمدے میں لے آیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی کمرے سے ایک مکروہ صورت بوڑھا اور ایک خوش پوش نوجوان باہر آیا۔ بوڑھے کے گلے میں ہار کے طور پر کھوپڑیاں لٹک رہی تھیں اور اس کا ایک بازو نہیں تھا۔ امرو نے پہچاننے میں دیر نہ کی کہ یہ بوڑھا شاطر جادوگر ہے اور نوجوان بلقان ہے جس نے سر پر شاہی تاج رکھا ہوا تھا۔ امرو نے گھوڑے سے نیچے اتر کر شہزادہ بلقان کو شاہی ادا بجا لاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، یہ فران کی شہزادی رخسانہ ہے اور میں ان کا محافظ ہوں۔ شاطر جادوگر جو بادشاہ شکران کو شہزادی کے روپ میں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، قسم سے میں نے آج تک اتنی خوبصورت شہزادی نہیں دیکھی، یہ تو کوئی حور ہے۔ فوراً پلٹ کر امرو نے بولا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ امرو نے شاطر کو گور کر کہا، بازو کٹے بڈھے، تم کیوں پوچھ رہے ہو جبکہ بادشاہ سلامت خود موجود ہیں؟ کیا تم بادشاہ سلامت کے خان سامہ ہو؟ لیکن تمہارا تو ایک بازو، بھلا تم روٹی وغیرہ کیسے پکاتے ہوگے؟ یہ سن کر شاطر حلق کے بل چیخا، بے وقوف آدمی، خاموش رہو۔ اگر میں چاہوں تو تمہیں ایک انگلی کے اشارے سے پتھر کا بت بنا سکتا ہوں۔ تمہارے ساتھ اگر شہزادی رخسانہ نہ ہوتی تو میں اب تک تمہیں پھونک مار کر بھسم کر چکا ہوتا۔ امرو دل میں ہنسا۔ بادشاہ شکران کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گھوڑے سے اتر کر شاطر جادوگر کا گلا دبا دے، کیونکہ امرو نے اسے تاکید سے کہا تھا کہ اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا جائے، ورنہ دونوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ شہزادہ بلقان نے امرو کو مخاطب کر کے کہا، محافظ، یہ ہمارے محسن اور دنیا کے سب سے بڑے جادوگر شاطر ہیں۔ امرو چہک کر بولا، بادشاہ سلامت، یہ سب سے بڑے جادوگر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا تو ایک بازو ہے۔ شاطر کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور لگتا تھا جیسے وہ امرو کو کچا ہی چبا جائے گا کہ شہزادہ بلقان نے پوچھا، تم لوگ یہاں کس لیے آئے ہو؟ امرو نے بتاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، ہماری شہزادی صاحبہ کو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے ملنے اور ملک ملک کی سیر کا بہت شوق ہے، اس لیے یہاں آئے ہیں۔ پھر شاطر کے قریب جا کر رازانہ انداز میں بولا، اصل میں شہزادی صاحبہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جسے دنیا میں کوئی شکست نہ دے سکے اور یہ اس سے شادی کر لے۔ شاطر نے اکڑ کر کہا، دنیا میں میں ہی ہوں واحد شخص جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا؟ امرو نے چھڑنے والے انداز میں ہو کر کہا، شاید اس لیے آپ نے ایک اپنا بازو اتار کر کسی صندوق میں حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ خواہ خواہ وہ تھکتا کیوں رہے، اور جب سخت ضرورت یا مقابلے کا وقت آئے گا آپ اسے نکال لیں گے۔ شاطر جادوگر نے دان پیسے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن شہزادہ بلقان نے کہا، آپ لوگ شاید طویل سفر سے یہاں پہنچے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامنے دائیں ہاتھ پر آرام گاہیں ہیں، آپ لوگ وہاں آرام فرمائیے، باقی باتیں شام کو کھانے پر ہوں گی۔ امرو اور بادشاہ شکران گھوڑے سے اتر کر کمرے میں چلے گئے اور ان کے گھوڑے ایک سپاہی نے اسبل میں لے جا کر باندھ دیے۔ امرو اور بادشاہ شکران جب کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں شمع دان کی جگہ کھوپڑیوں میں موم بتیاں جل رہی تھیں اور دیواروں پر ڈال اور تلوار کی جگہ ہڈیاں سجی ہوئی تھیں۔ بادشاہ نے ہاتھ مار کر انہیں گراتے ہوئے کہا، کمبخت نے سارے ماحول کو شیطانی بنا دیا ہے۔ اتنے میں سے باہر سے شاطر جادوگر اور شہزادہ بلقان کی زور زور سے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ امرو نے ہنستے ہوئے کہا، شہزادی رخسانہ، پہلے ذرا باہر کی باتیں غور سے سنیے۔ میری تدبیر سے فوراً کام کر دکھایا۔ شاطر کہہ رہا تھا، شہزادی بہت خوبصورت ہے، میں اس سے شادی کروں گا۔ بلقان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، شہزادی رخسانہ ہماری مہمان ہے اور وہ ایک بہت بڑے ملک سے تعلق رکھتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائے۔ شاطر سخت لہجے میں بولا، شہزادے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں شہزادی سے شادی ضرور کروں گا۔ شہزادہ بلقان نے غصے سے کہا، شاطر، ہم اس ملک کے بادشاہ ہیں اور ہماری اجازت کے بغیر یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ شاطر نے کہا، شہزادے، تم یہ مت بھولو کہ اس طرح میں نے تمہیں یہ حکومت حاصل کر کے دی ہے، اسی طرح تم سے چھین بھی سکتا ہوں۔ وہ اس طرح بول رہا تھا جیسے سانپ پھنکار رہا ہو۔ بلقان نے کہا، شاطر، تم اپنے نام کی طرح بہت بڑے مکار ہو،
تمہارے کہنے پر ہم نے آ کر اپنے نیک دل والد سے غداری کی اور ان کی شان میں گستاخیاں کی۔ ایک دو دنوں میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ تمہاری وجہ سے عوام ہم سے شدید نفرت کرتی ہے، وہ ہمیں چند ہفتے کی حکومت نہیں کرنے دے گی، خدا ہمیں معاف کرے۔ شاطر گرجا: شہزادے، میں اس طرح کی باتیں سننے کا عادی نہیں ہوں۔ آج سے شاداب آباد پر میری حکومت اور تم میرے غلام ہو۔ بادشاہ شکران نے گھبرا کر عمرو سے کہا کہیں وہ خبیث میرے بیٹے کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ شہزادہ بلقان نے نیام سے تلوار نکال کر کہا، بدبخت انسان، تو زندہ رہے گا تو مجھے غلام بنائے گا۔ شاطر کہکا لگاتے ہوئے بولا، چیونٹی بھی بلا پہاڑ سے ٹکرا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اس نے ہاتھ اٹھا کر شہزادے پر پھونک ماری تو شہزادے کا آدھا چہرہ جل کر سیاہ ہو گیا۔ شہزادے کو تکلیف سے کراہتا دیکھ کر شاطر زور زور سے کہکے لگانے لگا۔ غفلت کے یہ چند لمحے اس کے لیے قیامت بن گئے تھے۔ شہزادے نے غصے اور جوش میں آ کر شاطر پر تلوار کا ایک ایسا زبردست وار کیا کہ اس کی گردن اڑ کر دور جا گری۔ اسی لمحے عمرو اور بادشاہ شکران پر طلسماتی تیل کا اثر ختم ہو گیا اور وہ اپنی اصلی شکل میں آ گئے۔ باپ کو سامنے دیکھ کر شہزادہ اس کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگتے ہوئے بولا، ابا حضور، ہم نے آپ سے بہت بے ادبی اور گستاخی کی ہے، جس کی ہمیں یہ سزا ملی ہے کہ ہمارا چہرہ جل کر بدصورت ہو گیا۔ شہزادہ بہت شرمندہ ہوا اور پشیمان تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر بادشاہ کا دل بھر آیا۔ اس نے اسے گلے سے لگایا۔ شہزادے نے کہا، ہم ساری زندگی آپ کی خدمت کر کے اپنے گناہ کی تلافی کریں گے۔ پھر عمرو کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کون ہے؟ اور کچھ دیر پہلے وہ محافظ اور شہزادی رخسانہ جو آرام گاہ میں گئے تھے، وہ کیا تھا؟ عمرو نے اپنا تعارف خود کرواتے ہوئے کہا، میرا نام عمرو ہے اور مجھے یہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے، اسی لیے تمہیں اب بدصورت نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے زنبیل سے وہی عرق نکالا جس کے لگاتے ہی عمرو کی پنڈلی اور بادشاہ کے سارے جسم کے زخم صحیح ہو گئے تھے۔ اس نے عرق کے چند قطرے شہزادے کے جلے ہوئے حصے پر ڈالے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے عمرو کے لیے آنکھیں بچھا دیں اور اس کے لیے بہت اعلیٰ قسم کی دعوت کا اہتمام کیا اور کئی قسم کے انعام و کرام اسے دیے، جو اس نے سب کے سب اپنی زنبیل میں ڈال لیے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ عمرو اس کے پاس کچھ دن رہے، لیکن عمرو جس کام کے لیے نکلا تھا اسے جلد از جلد مکمل کرنا چاہتا تھا تاکہ بادشاہ فیروز سے کیا ہوا وعدہ پورا کر سکے۔ جب بادشاہ شکران نے اس سے پوچھا کہ کدھر کا قاصد ہے تو اس نے بتایا کہ دریائے سرخ کی تلاش میں ہوں، معلوم نہیں کہ ڈھونڈتے ہوئے کتنا وقت لگ جائے۔ پاس بیٹھے ہوئے شہزادے نے یہ سنا تو کہا، آپ کو اس کو تلاش کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی، کیونکہ شاطر ایک دفعہ بتا رہا تھا کہ ہمارے اس ملک شاداب آباد کے جنوب میں دور پہاڑی جنگل کے پار سرخ دریا ہے، جس میں آگ کے شعلے بہتے ہیں۔ عمرو مزید وقت ضائع کیے بغیر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے برق رفتار گھوڑا دینا چاہا، لیکن اس نے اپنی زنبیل سے ایک چھوٹا سا کاٹ کا گھوڑا نکالا اور اس کے کان کو پکڑ کر جیسے ہی ہلایا اس نے اصل گھوڑے کی صورت اختیار کر لی۔ 2-3 گھنٹے کی مسافت کے بعد عمرو دریائے سرخ پر فضا میں پہنچ گیا۔ دریائے سرخ میں پانی کی بجائے شعلے اٹھ رہے تھے اور ان کی تپش کئی فرلانگ دور تک پہنچ رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دریائے سرخ کے کناروں پر گھاس تو گھاس کوئی تنکا تک نظر نہیں آ رہا تھا اور کناروں پر پڑے ہوئے پتھر سیاہ تھے، ایسا لگتا تھا جیسے آگ نے انہیں جلا دیا ہو۔ عمرو کا گھوڑا خاصی اونچائی پر تھا، لیکن جیسے ہی وہ دریا کے وسط میں پہنچا، جلس دینے والی حرارت سے گھوڑا چکرایا اور گڑپ سے دریا میں جا گرا۔ اس سے پہلے کہ گھوڑے کے ساتھ عمرو بھی دریا میں گرتا، اس نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی چھتری نکال لی، جس نے اسے پلک جھپک میں اڑا کر لے جانے والے چھاتے کی طرح شکل اختیار کر لی۔ عمرو پسینے سے شرابور تھا، اگر چھتری فوراً اسے دریا کے پار نہ لے جاتی تو وہ پل بھر میں گھوڑے کی طرح جل کر راکھ ہو جاتا۔ دریا پار کرنے کے بعد اسے کچھ دور پرانی عمارتوں کے کھنڈرات دکھائی دیے۔ وہ زمین پر اترا اور باقی راستہ پیدل طے کرنے لگا۔ عمرو دل میں کہہ رہا تھا کہ ناگ جادوگر نے اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنا رکھا ہے جہاں کسی کا پہنچنا جان کھوجوں سے کم نہیں۔ اسے حد نظر تک ویرانے کے سوا کچھ نظر نہ آیا، یہاں تک کہ فضا میں کوئی پرندہ بھی نہیں اڑ رہا تھا۔ دن ہونے کے باوجود ماحول اتنا پراسرار تھا جیسے کوئی موت کی وادی میں ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ کھنڈرات کے پاس پہنچ گیا۔ جیسے اس نے ایک ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر قدم رکھا تو شور سے سارا ماحول گونج اٹھا۔ یہ زمین پر رینگنے والے سینکڑوں بلکہ لاکھوں سانپوں کی پھنکاریں تھیں، جو بیک وقت عمرو پر حملہ کرنے کے لیے تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ عمرو اچھل کر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پر جا چڑھا۔ عمرو کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسی لمحے صرف 1 انچ کے ساتھ ہی دم توڑ دیتا، کیونکہ عمرو اسی وقت ایک اژدھے کے اوپر کھڑا تھا جس کے 2 سر تھے اور وہ بار بار اپنی سرخ سرخ زبانیں باہر لا کر اور اندر لے جا رہا تھا۔ قریب ہی تھا کہ اژدھا کاٹنے سے پہلے اپنے گھیرے کے شکنجے میں جکڑ کر اسے مار ڈالتا۔ عمرو ایک زینے پر جا کر چڑھا، لیکن اسے سانپوں سے زمین قالین نظر آئی۔ عمرو جان گیا کہ زرد پہاڑ کے بزرگ نے سچ کہی کہا تھا کہ ناگ جادوگر تک پہنچنا آسان نہیں۔ بوڑھے کا خیال آتے ہی عمرو کو وہ چرایا ہوا تیل یاد آ گیا۔ اس نے فوراً شیشی نکالی اور ٹوٹے ہوئے ستون کے اوپر تیل کے چند قطرے ڈال دیے تو حیرت انگیز طور پر تمام سانپ جو پھن پھلائے عمرو پر جھپٹنا چاہتے تھے، سر جھکا کر تیزی سے اس ستون کی طرف بڑھنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے تیگ کی بو نے انہیں دیوانہ کر دیا ہو۔ اب عمرو کے لیے راستہ صاف ہو گیا تھا۔ عمرو نے اس بات سے فائدہ اٹھایا اور فوراً اندر داخل ہو گیا۔ دیکھا تو ہو کا عالم تھا، ایسا لگتا تھا جیسے یہاں برسوں برسوں سے کوئی نہیں آیا۔
इससे टूटे फूटे खंडर के दरो दीवार ऐसे ऐसा लगता था ये खंडर किसी जमाने में एक आलीशान महल रहा होगा। उमरू जब अंदर दाखिल हुआ तो अंदर से महल की हालत बाहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो एक राहदारी से होता हुआ कमरों के सामने पहुंच गया। यकीनन ये हैरत की बात थी। कमरे सजे हुए थे, कमरों की दीवारों पर रेशमी पर्दे लटक रहे थे और अंदर आराइशो आराम का तमाम सामान मौजूद था। फर्श पर कीमती और फूलदार कालीन बिछे हुए थे। बरामदे में सतूनों और दीवारों पर इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां लटक रही थीं। बरामदे के साथ ही एक संगमरमर की बड़ी खूबसूरत बारादरी थी और उसके सामने एक बड़ा सा बाग था जिसके दरमियान एक फवारा था और उसकी शक्ल एक उड़ते हुए परिंदे की तरह थी। चलते हुए फवारे से निकलने वाला पानी परिंदे के परों से उड़ता हुआ एक अजीब सा समा बन रहा था। अभी उमरू ये देख ही रहा था कि इसने किसी के कराहने की आवाज़ सुनी। आवाज़ ज़्यादा दूर की नहीं थी, इसीलिए इसे आवाज़ की कीमत मालूम करने में देर न लगी और वो जल्द ही इसकी तरफ बढ़ा। 3 कमरे छोड़कर चौथा कमरा, जिसका दरवाज़ा टूटी हुई सलाखों का बना हुआ था। उमरू ने दूसरी तरफ कमरे की वस्त में एक चुड़ैल को देखा जिसकी टांगें पत्थर की थीं, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती थी। इसने चलाकर कहा, अच्छे इंसान, तुम कौन हो? मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाओ। उमरू के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। इसे जादू नगरियों में ऐसे वाकयात से अक्सर वास्ता पड़ता रहता था। इसने इस चुड़ैल से पूछा कि तुम पर यह मुसीबत कैसे आई? चुड़ैल बताते हुए बोली, मैं शिवाला जादूगरनी हूँ और नाग जादूगर ने मुझे सांप बनाकर डसा और पत्थर का बना दिया। वो बहुत जालिम और लालची है। वो हमेशा अपनी जादुई ताकत को बढ़ाने की फिक्र में रहता है और सारी दुनिया में इसीलिए फिरता है। इसने मुझसे वो तिलिस्मी खोपड़ी मांगी जो मेरी नानी सामरा जादूगरनी ने दी थी। इस तिलिस्मी खोपड़ी के जरिए वो कई बेगुनाह लोगों को हलाक कर देना चाहता था, इसीलिए मैंने खोपड़ी देने से इनकार कर दिया। इस पर नाग जादूगर ने गुस्से में आकर बेखबरी में नाग की सूरत इख्तियार करके मुझे डस लिया, जिससे मेरा आधा धड़ पत्थर का हो गया और फिर मुझे लाकर यहाँ बंद कर दिया गया। उमरू ने इसकी सारी बात सुनकर चुड़ैलनुमा शवाला जादूगरनी से कहा, मुझे इससे हमदर्दी है। मैं नाग जादूगर की ख्वाहिश में आया हूँ। क्या तुम बता सकती हो वो इस वक्त कहाँ होगा और तुम्हें इसकी कैसे कैसे आज़ाद कराया जा सके? शवाला जादूगरनी ने कहा, नाग जादूगर यहाँ से एक सुनहरी परिंदे का रूप धाकर निकलता है और चांद की 14वीं तारीख को सिर्फ एक रात के लिए ही यहाँ आता है। मेरी रहाई इस तरह मुमकिन है कि नाग जादूगर को हलाक कर दिया जाए। यहाँ से 50 कोस शुमाल की तरफ एक घने जंगल पहाड़ी में एक चश्मा है जिसके पानी का रंग सब्ज है। अगर वो पानी मुझ पर छिड़क दिया जाए तो मैं असल हालत में आ सकती हूँ। इसके साथ ही जादूगरनी ने मिन्नत समाज करने वाले अंदाज में कहा, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो? तुम यकीनन बहुत बहादुर और समझदार हो। क्या तुम मुझे आज़ाद कराओगे? उमरों ने पुरजोश अंदाज में कहा, जालिम को इसके लिए इसकी सजा देना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। आज चांद की 12 है, जादूगर की वापसी में 2 दिन रह गए हैं, इसीलिए मैं पहले चश्मे का पानी ले आता हूँ जिससे तुम इसके कैद से निजात मिले। ये कहते उमरू तेजी से पलटा और महल से बाहर निकलकर शुमाल की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त उमरू सोच रहा था, काफ़ी दिन हो गए, मैं खासे तवील सफ़र के बाद अभी तक नाग जादूगर से सामना नहीं हुआ। बादशाह फिरोज यकीनन हर चढ़ते सूरज के साथ इस उम्मीद पर राह देख रहा होगा। आज शहर की नवीज पहुंचने वाली है, इसलिए उमरू ने जंबील से एक बार फिर रुमाल निकाला जिसके जरिए वो अपने 2 सवार जादूगर से मिलने गया था और इसे नीचे बिछाकर इस पर बैठा तो उसने छोटे से कलीन की शक्ल इख्तियार कर ली और फजा में परिंदे की तरह तैरता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस जादुई कलीन की रफ्तार खासी तेज थी, इसीलिए उमरू को मंजिल मकसूद पर पहुंचने में कुछ ज्यादा देर न लगी थी। जंगल घना था, इसीलिए वो नीचे उतरा और पैदल चलने लगा। इससे बहुत एहतियात से आगे बढ़ रहा था। इस एहतियात की वजह यह भी थी कि कहीं कोई जंगली जानवर इस पर हमला न कर दे। इसी तकरीबन 2 घंटे तक चढ़ाई का सफर करना पड़ा। पहाड़ तक पहुंचकर उमरू को चश्मा ढूंढने में कोई दिक्कत पेश न आई, क्योंकि इसका नीचे गिरता हुआ पानी काफी शोर कर रहा था। ऐसी जगहों पर चश्मों के पास प्यास बुझाने के लिए आने वाले जानवरों का आना जाना रहता था, लेकिन उमरू ने वहां किसी परिंदे तक को न देखा था, जिससे उमरू ने अंदाजा लगाया ये तो पानी बहुत कड़वा है या जरसरा है। जब उमरू चश्मे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि चश्मे का पानी गहरे सब्ज रंग का है और ऐसा महसूस होता था जैसे कोई स्याह मादा बह रहा हो। इसने पानी लेने के लिए एक बोतल निकाली। वो खुश और मुतमईन था। ये मरहला बगैर किसी मुश्किल के तय हो गया, लेकिन यूं ही वो बोतल में पानी भरने के लिए झुका। तेज फुनकार ने इसे अपनी जगह से फौरन हट जाने के लिए मजबूर कर दिया और उमरू की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि इसके सामने 3 सिरों वाला अजहा अपना फन फैलाए इस पर हमला करने के लिए तैयार था। इसी लम्हे से आवाज आई से, ए बेवकूफ इंसान, तू यहाँ क्यों आया? ये चश्मा दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर शैतान नाग जादूगर की मलकियत है। उमरू जर्द बहार के बूढ़े के तेल का कमाल देख चुका है। इसने फौरन वो शीशी निकाली। इससे पहले कि नाग इस पर हमला करे, इसने करीब के एक पत्थर पर तेल के कुछ कतरे डाल दिए, लेकिन सांप पर इसका कोई असर न हुआ और सांप ने पलक झपकने में इसे सूंघने की बजाय उमरू की दोनों टांगों को अपनी लपेट में ले लिया और वो अचानक हमले से मुंह के बल गिरा। इसी लम्हे उमरू की सारी चालाकी और फुर्ती भूल गई। जब इसने सर ऊपर किया तो वो हैरत अंगेज तौर पर एक कमरे में बंद था जिसकी दीवारें पत्थर की बनी हुई थीं। कमरे का कहीं कोई दरवाजा नजर न आ रहा था, सिर्फ एक छोटा सा रोशन थान था।
जो काफी ऊंचाई पर था। इसमें से किसी आदमी का गुजरना नामुमकिन था। सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं। अचानक कहके गूंजने लगे और एक करख्त आवाज ने मुखातिब होकर कहा, बेवकूफ इंसान, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। तुम कैसे चश्मे का पानी ले जा सकते हो? उमरू किसी खौफ या घबराहट से कहा, तुम कौन हो? सामने आओ, मैं किसी को पीछे से निजात दिलाने के लिए नहीं ले आया। कमरा एक बार फिर कहकों से गूंज उठा, मैं नाग जादूगर हूँ और तुम शायद शिवाला जादूगरनी को आज़ाद कराना चाहते हो। बेवकूफ़ी पर अब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। मुझसे अगर पहाड़ टकराए तो वो भी रेजा रेजा हो जाए। तुम कैसे ये सोच कर निकले हो कि मुझसे मुकाबला करोगे? मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंसान हूँ, उन्होंने गुस्से भरे लहजे में कहा। ऐ नाग जादूगर, तू समझ ले, अब तेरे जुल्म खत्म होने वाले हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाने के लिए आया हूँ। कहकों के दरमियान नाग जादूगर फिर से बोला, तुम मुझे इंजाम तक पहुंचाने के लिए आए हो? मैं रिहा हूँ। तुम इस कमरे में दीवारों से टकरे मार मार कर ख़त्म हो जाओगे। इसके साथ ही उमरू को ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई अजहा ज़ोर से फुनकार रहा हो और फिर ये आवाज़ दूर होते होते ख़त्म हो गई। उमरू ज़ेरे लब मुस्कुराया। कुछ देर इसने दीवारों को टटोलना शुरू कर दिया कि यहाँ ज़रूर कोई ना कोई दरवाज़ा होगा, लेकिन इसे मायूसी हुई और उमरू सारी अयारी और तरारी धरी की धरी रह गई। अगर इंसान खुदा को दिल में याद करे तो वो अपने बंदे की मदद ज़रूर करता है। उस वक़्त यही हुआ। उमरू ने कहा, है परवरदिगार, मुसीबत में मुब्तला एक इंसान मदद के लिए निकला हूँ, तो मेरी मदद फरमा। इसके साथ ही इसने एक इसमें आदम पढ़कर रोशनदान वाली दीवार पर हाथ रखा। एक खटका हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर वहां से हट गया, जिससे उमरू बहुत आसानी से बाहर निकल सकता था। जब वो आसानी से बाहर आया तो ऐन चश्मे के किनारे मौजूद था। उस वक्त उसे वहां कोई अजहा नजर न आया। इसने शाम को उमरू की दुम पकड़कर जकड़ लिया था। इसको चश्मे का मुहाफिज समझा था। अब ख्याल आया कि वो नाग जादूगर खुद था। अगर उसको उसका थोड़ा सा भी अंदाजा हो जाता, यकीनन अपनी तलवार से उसका सर कलम कर देता। लेकिन जिंदगी ने शायद इसे कुछ देर के लिए और मोहलत दे दी थी। उमरू ने वहां से शीशी भरी और उसे महफूज करके अपनी जंबील में डाल कर रवाना हो गया। उस वक़्त दिन होने वाला था। पौ फट चुकी और सुबह का उजाला फैलने वाला था। उमरू इन खंडराटों के नज़दीक पहुंच चुका था, जो कि असल में नाग जादूगर का महल था। उमरू खंडर के अंदर दाखिल हुआ तो वो ये देख कर हैरान रह गया कि इन सांपों का नामो निशान तक नहीं था जो पहले रोज़ खंडर के अंदर दाखिल हुए थे, इस पर हमलावर हुए थे। वो सोचने लगा कि आखिर इसकी क्या वजह है। फिर इसे ख्याल आया कि इसने पहाड़ी चश्मे पर नाग जादूगर को ये कहते सुना था कि अब तुम दीवारों से सर टकरा टकरा कर ख़त्म हो जाओगे। इसका मतलब था कि ये नाग जादूगर की इसकी हर हरकत नजर आती है। ये सोचते ही शिवाला जादूगरनी का ख्याल आया कि नाग जादूगर ने इन्हें कहीं ख़त्म तो नहीं कर दिया। वो तेज़ी से उधर बढ़ने लगा जिधर शिवाला जादूगरनी कैद थी। जब वो वहां पहुंचा तो शिवाला जादूगरनी ऐसी हालत में मौजूद थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उमरू को देखते ही जादूगरनी खुश हुई, मुझे जल्दी से इस मुसीबत से निजात दिलाओ। उमरू ने आगे बढ़कर जादूगरनी पर पानी छिड़का तो एकदम सारे कमरे में धुआं भर गया। धुआं छटा तो जादूगरनी अपनी असली हालत में थी और अब उसका चेहरा भी डरावना नहीं था। इसके साथ इसने मुंह में कुछ पड़कर बड़बड़ाया। जंगले पर फूंक मारी तो जंगला पानी बनकर बह गया। वो कमरे से बाहर निकली। उसने उमरू का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुम मेरे मोहसिन हो, बताओ मैं तुम्हारे किस काम आ सकती हूँ। उमरू ने कहा कि नाग जादूगर ने एक अच्छे इंसान बादशाह फिरोज को बगैर किसी वजह से टांग से मफलूज कर दिया है। इसकी जुल्म की सजा नाग जादूगर को देने आया हूँ। तुम इस सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकती हो? शिवाला जादूगरनी ने कहा, आज चांद रात की 14वीं तारीख है। नाग जादूगर यहाँ महल में जरूर आएगा। रात होने में अभी काफी वक्त है। शिवाला जादूगरनी अपनी जादुई ताकतों से अड़ाकर वो को हकाफ ले गई और उसकी शानदार दावत की। उमरू कई दिनों का भूखा था तो लेकिन वो खाने पर इस तरह टूट पड़ा था जैसे कई महीनों का भूखा हो। ये देखकर शिवाला जादूगरनी हंसने लगी, लेकिन उमरू खाना खाता रहा। खाना खाकर इसने खुदा का शुक्र अदा किया। इसके बाद शिवाला जादूगरनी ने उमरू को सारे कोहकाफ की सैर कराई। सूरज छिपने वाला था। वो दोनों वापस नाग जादूगर के महल में आए और बाग में छुप कर बैठ गए। सूरज की सुनहरी किरणें बाग के दरख्तों की चोटियों पर इस तरह फैली हुई थीं जैसे हर तरफ सोना बिखरा हुआ हो। उमरू और जादूगरनी छुप कर नाग जादूगर का इंतजार कर रहे थे। वे ऐसी जगह छुपे हुए थे जहां नाग जादूगर का कमरा साफ नजर आ रहा था। रात हुई, चांद निकल आया, लेकिन अभी तक नाग जादूगर का कहीं पता न था। आधी रात का वक्त हुआ। चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। इसकी ठंडी ठंडी चांदनी में दरख्त, पत्ते और फूल वगैरह हर चीज खुदा की कुदरत का अजीब नज़ारा पेश कर रहे थे। और उमर इस नज़ारे को देखने में महव था कि अचानक वही सुरीली आवाज सुनी जो पहले सुनहरी परिंदे के उड़ने से सुन चुका था। देखते ही देखते वही सुनहरी परिंदा नाग जादूगर के कमरे में दाखिल हुआ। उमरू ने चांद की रोशनी में इस परिंदे को पहचान लिया। परिंदा खिड़की से अंदर गया था। उमरू और शवाला जादूगर ने भी कमरे के दरवाजे की तरफ लपके। कमरे में रोशनी के लिए कई शमें रोशन थीं और कमरे के वस में एक अजीबोगरीब कुर्सी रखी हुई थी जो कि इंसानी हड्डियों से बनी हुई थी। कुर्सी की टेक के ऊपर एक इंसानी खोपड़ी सजाई गई थी। परिंदा इसी कुर्सी पर उतरा। शवाला जादूगर ने दरवाजे में रुक गई और उमरू तलवार सौंध कर आगे बढ़ा। पलक झपकने में परिंदे ने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली
उमरू ये देखकर दंग रह गया कि कुर्सी पर जर्द पहाड़ वाला बूढ़ा बैठा हुआ था। उस वक्त उसकी शक्ल बेहद मकरूत लग रही थी। सुरख सुरख और बाहर को निकली हुई खौफनाक आंखें, बड़ी बड़ी भुएं, लंबी दाढ़ी, गंजा सर, गले में इसने एक इंसानी खोपड़ी लटका रखी थी और दाएं हाथ में एक सांप पकड़ा हुआ था। उमरू ठिठक कर रुक गया। इससे पहले कि उमरू मुंह से कोई बात निकालता, इस बूढ़े ने कहका लगाते हुए कहा, पागल इंसान, शायद तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं और यहाँ भी आ पहुंचे हो। उमरू ने बगैर किसी खौफ से कहा, मक्कार बूढ़े, तुम तो नाग जादूगर हो। इसने कहकों के दौरान कहा, तुम मेरे हाथ में ये सांप नहीं देख रहे? अगर ये पत्थर पर भी मुंह मार दे तो वो राख बन जाता है। मैं ऐसे 10 सांपों का नाश्ता करता हूँ। अगर मेरे नाखन से हाथी के जिस्म पर भी मामूली सी खराश आ जाए तो वो पल भर में दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगा। तुम्हें कैसे जरूरत हुई कि मेरे सामने तलवार सौंध कर खड़े हो? उमरू के दिमाग में फौरन ये बात गूंजी, अगर ये नाग जादूगर है तो हवा जादूगर ने मुझे इसके पास क्यों भेजा? और उसके साथ ही नाग जादूगर के कहकों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। उमरू ने गरज कर कहा, जालिम जादूगर, सांप चाहे जितना जहरीला क्यों ना हो, आखिर इसे एक दिन मौत का मजा चखना पड़ता है। तू जान ले कि आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। नाग जादूगर ने सांप वाले हाथ को लहराते हुए कहा, नादान आदमी, तू समझ रहा है कि तेल वाली शीशी तो मुझे धोखा देकर पहाड़ से चुरा ले आया? तो ये तेरी भूल है, क्योंकि मैंने दनिस्ता तुम्हें इसका मौका दिया था। उमरू बोला, जर्द पहाड़ वाले सफेद रेश के बारे में मैं तुम्हें बताया था कि वो एक बुजुर्ग और खुदा तरस इंसान है। नाग जादूगर ने कहा, तुमने ठीक सुना है, लेकिन मैंने इस बुड्ढे को 6 माह पहले हिला कर दिया था। इस पहाड़ पर मैंने इसलिए कब्जा किया है कि वहां पर रहकर अपने रास्ते से सबसे बड़ी रुकावट हवा जादूगर को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था, ताकि सारी दुनिया के जादूगर मुझे ही अपना शहंशाह तस्लीम कर ले, और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। उमरू के सामने नाग जादूगर के जुल्म की एक नई तस्वीर आई। इसने कहा, मैं तुम्हें हवा जादूगर तक पहुंचाने से पहले हिला कर दूंगा। और जैसे इसने तलवार हवा में लहराई, नाग जादूगर ने हंसते हुए कहा, तुम किस हवा जादूगर की बात कर रहे हो? उसके साथ ही इसने हाथ में इशारा किया और पलक झपकने में कमरे में बड़ा सा पिंजरा मौजूद हुआ, जिसमें हवा जादूगर जंजीरों से बंधा हुआ कैद था। ये देखकर एक दफा तो उमरू के होश उड़ गए। ऐसे में वो सोचने लगा कि जबरदस्त आदमी पर काबू पाना कुछ आसान नहीं। हवा जादूगर ने पिंजरे के अंदर से चलाकर कहा, उमरू मेरे दोस्त, खुदा के लिए मुझे जालिम के फंदे से बचाओ। उमरू की कैफियत इसके देखने वाले की काबिल न थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कदम उठाए। इसके जहन में फौरन एक तरकीब आई कि इस इंसान गुस्से में कुछ लम्हों के लिए अपने होशो हवास खो बैठता है। अगर नाग जादूगर को गुस्सा दिलाया जाए तो उसके लम्हे पर इस काबू पाने वाली कुछ तरकीब हो सकती है। इसने कहा, नाग जादूगर, तुम अपनी बहादुरी की जबानी किस्से तो बहुत सुना चुके हो, मगर तुमने बादशाह फिरोज पर जुल्म करके बहुत बड़ी बुजदिली का सबूत दिया है। उमरू की ये तरकीब कामयाब रही। जादूगर गुस्से से चलाते हुए कहा, पागल इंसान, तुम बुजदिल कहते हो? अगर मैं चाहूं तो अपनी उंगलियों पर सारी दुनिया को नचा सकता हूँ। मैं बादशाह फिरोज के पास एक दफा अपनी जरूरत के लिए गया था। उस वक्त हम दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिरोज ने अपने बादशाह होने के तकब्बुर में मेरी जरूरत को हकारत से दत्कारते हुए कहा, उस वक्त मेरे पास ये ताकत और कुव्वत नहीं थी। मैंने अब फिरोज से इस बेइज्जती का बदला लिया है। अगर मैं चाहता तो इसे जान से मार देता, लेकिन मैंने पुरानी दोस्ती का भरम रखा। उमरू ने इसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, यकीनन तुमने दोस्ती के पाक जज्बे को भरम रखा है कि लोग दोस्तों से नफरत करने लगे। नाग जादूगर ने चीते की तरह भिरते हुए कहा, चुप रहो, तुम्हें मुझसे क्या सबक पढ़ाने आए हो? उस वक्त जादूगर का जिस्म गुस्से से लरज रहा था। इसकी लाल अंगारा आंखें तकरीबन बंद थीं। उमरू को शायद इसी लम्हे का इंतजार था। इसने आगे बढ़कर तलवार का भरपूर वार किया। तलवार नाग जादूगर की गर्दन को काटती हुई निकल गई, लेकिन जादूगरों के कहके ने शिद्दत कर दिया, जैसे इसने तलवार का वार खड़े पानी पर किया हो। लेकिन एक साथ भी जाया किए बगैर दूसरा वार भी कर दिया, वो भी कारगर साबित न हुआ। उमरू जान गया कि नाग जादूगर पर तलवार का वार ऐसा है जैसे पानी को काटने की नाकाम कोशिश हो। उमरू उछलकर पीछे हटा, लेकिन इससे कबल के वो किसी खास तदब्बुर के तहत जादूगर पर काबू पाता। जादूगर ने इसकी तरफ टिकटिकी बांधकर जो घूरा तो उमरू एकदम कमर तक जमीन में धंस गया। इसकी तलवार और जंबील दूर जा गिरे। अब तो जादूगर के कहकों में शिद्दत आ गई। इसने हाथ में पकड़े हुए सांप को जमीन पर छोड़ दिया। सांप फन उठाए उमरू के सामने झूमने लगा। उस वक्त उमरू की बेबसी और बेचारगी देखने के काबिल थी। इसे अपनी मौत आंखों के सामने नाचती हुई नजर आ रही थी और चाहता था कि उमरू को काट दे। के दरवाजे की ओर में खड़ी हुई शवाला जादूगरनी ने अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाया तो उसके आग का एक बहुत बड़ा शोला सा निकलकर सांप पर गिरा और सांप देखते ही देखते जलकर भस्म हो गया। नाग जादूगर, जो शायद इसलिए नाग जादूगर मशहूर था कि वो अपने दुश्मनों पर सांपों के जरिए हमला करता था, उस वक्त वो शायद उसी तीसरे आदमी की मौजूदगी से बेखबर था। वो सांप की यह हालत देखकर फौरन ही अपनी जगह से उठा और शोला बार आंखों से दरवाजे की तरफ लपका। लेकिन वो नहीं जानता था कि उमरू चाहे कि इतनी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो, वो किसी अच्छे मौके को हाथ से नहीं जाने देता। जैसे ही जादूगर इसके करीब से गुजरा, उसने इसकी टांग खींच ली और वो धर्म से मुंह के बल जमीन पर गिरा। इसके नाक और मुंह से खून बहने लगा। पिंजरे में बंधा हुआ जादूगर अपनी तकलीफ को भूलकर दिल खोलकर हंसने लगा। अब तो नाग जादूगर गुस्से से पागल हुआ जाता था। वो चाहता था कि उमरू की गिरी हुई तलवार से उमरू का सर उड़ा दे, लेकिन श्वाला जादूगरनी ने सामने आते हुए कहा,
नाग जादूगर, तुमने मुझे कई महीने तक पत्थर का मुजस्समा बनाकर कैद में रखा, लेकिन अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। नाग जादूगर इसे देखकर ठटका। श्वाला जादूगरनी ने मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो आग के एक हाले ने नाग जादूगर को घेरे में ले लिया। नाग जादूगर के इस घेरे से निकलना कोई मुश्किल बात न थी। इसने उंगली के इशारे से इस हल्के को तोड़ दिया। इतनी देर में श्वाला जादूगरनी ने हवा जादूगरनी को आजाद कर दिया। हवा जादूगर को कहका लगाते हुए कहा, मेरे दोस्त उमरू ने ठीक ही कहा था, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। नाग जादूगर ने किसी परेशानी के बगैर कहा, तुम जैसे हजार जादूगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अलबत्ता ये महल तुम्हारी कब्र जरूर बन जाएगा। इसी लम्हे हवा जादूगर ने नाग जादूगर से छुपाकर एक सब्ज रंग की गेंद उमरू की तरफ लुढ़का दी। जैसे ही उमरू ने गेंद को पकड़ा वो जमीन से बाहर आ गया और एक लम्हा जाया किए बगैर इसने अपनी तलवार और जंबील उठाई और नाग जादूगर अकब में इस पर झपटा मारा, जैसे बाज अपने शिकार पर झपटता है। नाग जादूगर शायद इससे बेखबर नहीं था। उमरू के साथ यही हुआ था कि कुछ देर पहले नाग जादूगर के साथ जो हो चुका था, यानी वो मुंह के बल जमीन पर आ रहा, लेकिन इससे उठने की देर न की। नाग जादूगर ने जैसे ही अपने तीनों दुश्मनों को अपनी तरफ बढ़ते देखा, वो अपने बाएं पांव पर खड़े होकर तेजी से घूमा। उसके साथ ही चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अंधेरे की चादर फटी तो नाग जादूगर का वहां नामो निशान नहीं था और वो तीनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। हवा जादूगर और श्वाला जादूगर ये कहते हुए वहां से तेजी के साथ रवाना हो गए तो वो यकीनन जर्द पहाड़ में गया होगा, लेकिन उमरू कुछ और ही सोच रहा था। उमरू हवा जादूगर और श्वाला जादूगरनी की तरह महल से ना गया, बल्कि रात का आखिरी पहर और पूरा दिन बाग में दरख्तों के एक झुंड के पीछे छुप कर गुजारा। उमरू की अय्यारी की वजह से इसका जहन हर बात को तेजी से सोचता था। उस वक्त भी इसके जहन में किसी गोशे में ये बात यकीन की हद तक बैठी हुई थी कि नाग जादूगर गुज़श्ता रात महल से बाहर नहीं गया, क्योंकि वो इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि अपने ठिकाने से निकलकर किसी गैर महफूज मुकाम पर अपने दुश्मनों श्वाला जादूगरनी और हवा जादूगरनी के जाल में आ जाए। गुस्से के आलम में इसकी तलाश में निकले थे। जब रात का अंधेरा फैलने लगा तो उमरू दरख्तों के झुंड से बाहर निकला। उस वक्त वो नाग जादूगर के हुलिये में था। ऐसा मालूम होता था कि इसका जुड़वा भाई हो। वह बड़े मुहतात अंदाज में चलता हुआ बरामदे की तरफ आया। बाग के दरमियान बने हुए फुआरे के करीब पत्थर की एक सिल पर जैसे ही इसका पांव पड़ा, हल्का सा खटका हुआ और वो सिल अपनी जगह से हट गई। नीचे सीढ़ियां बनी हुई थीं। इसने कुछ लम्हे सोचा, फिर इसमें वो उतरता चला गया। सीढ़ियां खासी तादाद में थीं। ये देखकर हैरान रह गया कि महल के नीचे इससे भी ज्यादा के खूबसूरत एक और महल था और रोशनी के लिए दीवारों पर जगह जगह इंसानी खोपड़ियों में शमएं रोशन थीं। इसने मुख्तलिफ कमरों में श्वाला जादूगरनी की तरह कई मर्द और औरतों को पत्थर का बुत बने हुए देखा, जिनकी आंखों से ज़ारों की तार आंसू बह रहे थे। हर आदमी नाग जादूगर के जुल्म की कहानी सुना रहा था। थोड़ा सा आगे जाकर उमरू एक बड़े कमरे में देखा कि नाग जादूगर हड्डियों की कुर्सी पर बैठा अनमोहक शाम के खाने उड़ा रहा है। इसके दाएं बाएं कनीज़ और गुलाम खिदमत के लिए खड़े हैं। खाना खाते वक्त भी एक सांप इसने अपने हाथ में पकड़ रखा और वो कई सांप उसके गले में हार की तरह पड़े हुए हैं। उमरू जो नाग जादूगर के बहरूप में था, बेधड़क कमरे के अंदर घुस गया। कनीज़ों और गुलामों ने हूबहू दूसरा नाग जादूगर देखा तो वह हैरान रह गए। ये मालूम नहीं हो रहा था कि असली कौन है और नकली कौन। उमरू गुस्से भरी आवाज में कनीज़ों और गुलामों से कहा, हट हट जाओ, मैं तुम्हारे आका नाग जादूगर का जुड़वा भाई हूँ। नाग जादूगर की भी आंखें हैरत से फटी हुई थीं। उमरू ने इसके करीब जाकर एक जनाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारते हुए कहा, तुम कैसे भाई हो, मुझे खाने की दावत भी नहीं दे रहे। इससे पहले कि नाग जादूगर कोई बात करता, इसे कुर्सी से नीचे धक्का देकर कुर्सी पर बैठ गया और कौरमा बिरयानी और भुने हुए मुर्गों पर टूट पड़ा। नाग जादूगर हैरत ज़दा था। इसने गुस्से भरी आवाज में कहा, मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंच गए हो? उमरू जब पेट भर चुका तो कहके लगाता हुआ उठा। अचानक अपनी एक टांग नाग जादूगर की टांग से उलझाकर वो खींची तो वो धड़म से नीचे जा गिरा। उमरू उछलकर खाने की मेज के ऊपर चढ़ गया और तालियां बजा बजाकर नाचने लगा। उस वक्त उमरू की अय्यारी और खरामस्तियां अरूज पर थीं। नाग जादूगर अपना बाजू से हिलाता हुआ उठा और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि नीज़े और गुलाम मुंह दबाए बुरी तरह हंस रहे थे। नाग जादूगर ने इन्हें डांट कर वहां से जने जाने को कहा और उमरू को गर्दन से पकड़कर बोला, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जल्दी बताओ वरना सांप से डसवा कर एक पल भी तुम्हें अगली दुनिया में पहुंचा दूंगा। उमरू को शायद इसी लम्हे का इंतजार था। इसने सालन की भरी हुई एक प्लेट उठाकर नाग जादूगर के चेहरे पर उल्टा दी। मिर्चों ने इसकी आंखों में आग सी लगा दी। वो अपने दोनों हाथों में अपनी उंगलियां रख कर चलाते हुए बोला, कमबख्त तुम कौन सी बदरू हो, मैं तुम्हें एक फूंक से भी पताल की गहराइयों में पहुंचा दूंगा। उमरू ने हंसते हुए कहा, नाग जादूगर तुम अपनी खैर मनाओ, मैं उमरू हूँ। आवाज दो अपनी जादुई कोफ्तों को जो तुम्हें आज मेरे हाथों से बचा सकें। जादूगर ने हाथ में पकड़े हुए सांप को उमरू पर उछाल दिया। उमरू ने बहुत तेजी और हुनरमंदी से सांप को फौरन गर्दन से पकड़ लिया तो उसे काट ना सके। इससे पहले कि नाग जादूगर अपना कोई दूसरा जादुई हरबा इस्तेमाल करता, उमरू ने सांप को वापस जादूगर पर उछाल दिया। सांप ने जादूगर पर गिरते ही इसकी पिंडली पर काट लिया। पलक झपकने में नाग जादूगर का नीचे वाला धड़ पत्थर का बन गया। इसके गले में पड़े हुए सांप नीचे उतर कर रेंगते हुए कमरे से बाहर निकल गए। ऐसा मालूम होता था कि नाग जादूगर ने अपने जादू के जोर से सांपों को अपने ताबे किया हुआ था। नाग जादूगर ने आहोजारी करते हुए कहा, उमरू मुझे माफ कर दो, अगर तुम्हारे पास वो पानी है जो तुम सजवा चश्मे से लाए थे, मुझ पर छिड़को ताकि मैं ठीक हो जाऊं। उमरू ने कहा, आज तक जो जुल्म तुम दूसरों पर करते रहे हो
آج اس میں تم خود گرفتار ہو۔ وہ پانی تو میں نے پھینک دیا تھا، لیکن تم چلا کیوں رہے ہو؟ لیکن اس چشمے کا تو تم خود مالک ہو۔ ناگ جادوگر نے ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا، اوہ اب کیا ہوگا؟ تمہارے وہاں سے روانہ ہونے کے بعد میں نے یہ جانتے ہوئے پہلے وہاں جانور اور پرندے پانی پیتے تھے اور جنگل کا سبزہ اسی وجہ سے تھا، میں نے اسے زہر کر دیا تھا اور اب اس چشمے کو تباہ کر دیا ہے۔ میں کیا کروں؟ اب میں کیا کروں؟ وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ عمرو نے سخت لہجے میں کہا، تم نے اپنی جادوئی طاقت کو بڑھانے کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا ایک مشغلہ بنا لیا تھا۔ ظالم کا ظلم ہمیشہ نہیں رہتا۔ قدرت کی طرف سے تم بھلا کس طرح سزا سے بچ سکتے ہو؟ اسی لمحے ایک دھماکے سے چھت پھٹی اور شعلہ جادوگرنی اور ہوا جادوگر طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئے اور دونوں کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی چنگاریاں ناگ جادوگر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت ناگ جادوگر کی چیخیں بڑی دردناک تھیں۔ ناگ جادوگر کے مرتے ہی ہر طرف دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ کچھ دیر بعد جب دھواں ختم ہوا تو ناگ جادوگر کی قید میں تمام لوگوں پر اس کے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ یہ سب لوگ مختلف ملکوں کے شہزادے اور شہزادیاں تھیں۔ سب نے عمرو کا شکریہ ادا کیا اور اس کی بہادری اور جرأت کی تعریف کی۔ عمرو نے انہیں ہوا جادوگر اور شعلہ جادوگرنی کے ذریعے ان کے ملکوں میں روانہ کیا اور خود بادشاہ فیروز کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہوا جادوگر نے کہا، عمرو تم نے ایک بار پھر میری جان بچا کر مجھے دوست سے غلام بنا لیا ہے۔ عمرو نے سبز چشمے کا بچا ہوا پانی ضائع نہیں کیا تھا۔ اس نے بادشاہ فیروز کے پاس جا کر اس کی مفلوج پر وہ پانی ڈالا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ فیروز نے اپنی صحت یابی کی خوشی میں عمرو کے اعزاز میں ایک بہت بڑی شاہی دعوت کا انتظام کیا اور عمرو جب وہاں سے جانے لگا تو بادشاہ فیروز نے اشرفیوں سے بھرے ہوئے کئی صندوق اس کے ہمراہ کر دیے۔ عمرو ان صندوقوں کو دیکھ دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو رہا تھا اور اپنے سر کو ادھر سے ادھر اس طرح ہلا رہا تھا کہ خیالوں ہی خیالوں میں اسے اشرفیوں کی جھنکار نغموں کے سرور دے رہی تھیں۔